beautiful people, this is Saili and welcome back to my channel. Okay, just kidding. Welcome back to my channel, guys. So I'm here with another vlog. So it's going to be about my weekend trip to Bhandadara Lakeside camping. So why to wait? Let's go and watch it. Starting the journey, we preferred to go by local train and completely local transport. So we boarded, got down at Kasara station. It took us about 2 hours. फिर वहाँ से हमने, so luckily we got a person who was going the same direction. So उसने हमें कुछ 150 rupees charge किया. So Kasara से we had to go to Shendi Gav. And Shendi Gav से again ahead it was 10 kilometers जो हमारा camp site था. So the camp which we were going to, उसका नाम था New Bhandadara Camping. So I'm going to link the number of the person in the description below. You can contact the person if you really want to go to this camp. Kasara से शेंडी गाँव पहुँचे through jeep, local jeep था. Approximately another 1.5 hours. So अभी तक हुए थे हमें 3.5 hours. And let me tell you one thing, यहाँ के जो roads है वो बहुत ही ज़्यादा wavy and zigzag है, you know. So might be कि many of you might get motion sickness भी हो सकता है. कुछ हमारे कुछ friends को हुआ था. तो जिप में हम बैठे थे वो तो काफ़ी तेज चला रहा था. तो it was like really सर भी घूमने लगा था. But it was fun because once you क्रॉस कसारा लाइक हाफ एन आवर आगे जाते हो कसारा से, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है. सो यू रियली एंजॉय द जर्नी. सो फिर वंस वी रीच शेंडी गाव, वहाँ पे हमें थोड़ा हॉल्ट करना पड़ा बिकॉज देन वी कॉल्ड द कैंप साइट का गाय एंड देन उसने कहा कि ही इज सेंडिंग अ लोकल व्हीकल टू पिक अस अप. बट देन उसने भी ऑब्वियसली लोकल व्हीकल मतलब वो फ्री नहीं था, 25 रुपीज़ पे करना पड़ा हमें उसे भी. फिर वहाँ से शेंडी गाँव से आगे ये टुक अस लाइक अनदर हाफ एन आवर. और वो जो रोड था वो बहुत ही ज़्यादा नैरो था, छोटा सा रोड था. तो बट सराउंडिंग एरिया था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, यू नो, फील्ड्स, ग्रास covered on all the sides. The climate was really cool as compared to what was here. So finally हम हमारे camp site पहुँचे कुछ around 3:30 4 o'clock के around पहुँचे. Yeah, so let me tell you more about this Bhandadara camping now. I think this we went to was New Bhandadara camping and उन्होंने हमें cost per person was around 900 because one of our friend knew the person of the campsite, so इसलिए उसने हमें थोड़ा discount दिया था. Otherwise it is something around 1000 के above होता है cost. Now what is included in this is checking time is 4 o'clock in the evening. आपका चेकिंग होता है. जैसे आप चेकिंग करते हो you get snacks and tea. So snacks में हमें मैगी ऑफर किया था. Then you have night dinner, that is barbecue, and they also have veg dinner. Also they have next day morning snacks, breakfast that is, and also a boat ride. सामने ही लेक होता है, so you get a boat ride free included in this cost. अब बात करते हैं यहाँ की लेक साइड की. सो वी रीच देयर अराउंड 4 o'clock एंड ऑलरेडी टेंट्स लगा के रखे थे बिकॉज वी वर द फर्स्ट वन टू रीच द साइट. सो हमने सोचा व्हाई नॉट, यू नो, लेट्स जस्ट मूव आवर टेंट्स नियर टू द लेक एंड सो सेटअप करके दिए. इट वाज रियली नाइस. वहाँ का भी बहुत ज़्यादा अच्छा था. एंड फिर हमने कुछ गेम्स खेले. सो देयर इज दिस लोकल हाउस, लोकल फैमिली जो कि वहाँ से कुछ साइड में उनका घर है. सो दे लुक आफ्टर ऑल दिस अरेंजमेंट्स, हमारा खाना, हमारा अरेंजमेंट्स. सो उनके घर में हम गए थे. इट वॉज लाइक मोर ऑफ अ होम टू अस. और फिर सम आउटडोर गेम्स, थोड़ा टाइम पास किया. ऐसे कहते कहते इट टुक 7 o'clock हो गए. फिर देयर वाज अनदर 2-3 ग्रुप्स जो हमें ज्वाइन हुए. बहुत अंधेरा होता है तो यू रियली कांट मूव अराउंड, आप नहीं जा सकते. बट आप कैंपिंग में देयर इज बॉनफायर, देयर इज बारबेक्यू गोइंग ऑन, यू कैन प्ले म्यूजिक, यू कैन डांस, यू कैन, यू नो, प्ले सम गेम्स विद योर फ्रेंड्स. इट वॉज माई फर्स्ट टेंट स्टे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था. एंड इट वॉज एग्जैक्टली हाउ आई इमेजिन इट टू बी. बहुत कंफर्टेबल था. टेंट्स वर big enough for 2 or 3 people accordingly. You can choose. At the night time you can see the stars shining, so it look more pretty.
basis. In terms of transport, I would give it, I would rate it 8 out of 10 because the place is little in the interiors. अगर बात करें हाइजीन की तो आई वुड गिव इट 10 on 10 बिकॉज ट्रूली उन्होंने बहुत अच्छे से हाइजीन मेंटेन किया है. वॉशरूम देयर इज दिस कॉमन वॉशरूम दैट यू हैव टू एडजस्ट. आई थिंक फॉर अ डे इज ओके, दे हैव दिस इंडियन वॉशरूम, बट आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन टाइम. एंड देन व्हेन इट कम्स टू फूड, आई थिंक फूड क्वालिटी आई वुड गिव इट 8 on 10. थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं. ऑब्वियसली यू कैंट एक्सपेक्ट डिलीशियस और समथिंग डिफरेंट फूड. इट्स नॉर्मल होम कुक्ड फूड, बट थोड़ा सा अगर क्वालिटी इंप्रूव करे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा. फूड के लिए आई गिव इट 8 on 10. प्राइस, आई थिंक इट्स कंप्लीट पैसा वसूल. 1000 में आपको 1000 या 1500 इसके बीच में कुछ प्राइस होता है. खाना रहना, आई थिंक इट्स रीजनेबल, सो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ विजिट. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस. आप अपना प्राइवेट व्हीकल ही करिए. यू नो यू कैन ऑन द वे यू कैन हॉल्ट एनीवेयर यू वांट. आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा. इफ यू गो बाय लोकल व्हीकल्स लाइक वी वेंट, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द व्हीकल्स, फिर उनसे बार्गेनिंग करने में. तो इट्स बेटर दैट यू डू योर प्राइवेट व्हीकल. थोड़ा बहुत शायद आपका कॉस्ट होगा इंक्रीज होगा, बट देन इट्स कंफर्टेबल और आप जहाँ चाहे हॉल्ट कर सकते हो. लाइक आप कसारा से जब चेलीगांव जाते हो ना तो बीच में देयर इज इगतपुरी एज वेल. तो आप चाहे तो इगतपुरी में रुक कर भी वहाँ के 1-2 साइट सीइंग कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एज वेल. So yeah, I would suggest that. I would recommend that you do your own private vehicle, and if you're ready to take a little more efforts and if you want to bring down your cost, then you can go by local train and local jets. Per person charges train to around 1500 हमारा. नेक्स्ट डे हमने 10 o'clock के अराउंड ब्रेकफास्ट किया. फिर हमने बोटिंग भी किया नेक्स्ट डे मॉर्निंग. बहुत ही अच्छा था बोटिंग, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इवनिंग में बोटिंग करते हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको. So talking about our return journey, हमारा जो लोकल गाइड था उन्होंने हमारे लिए जिप अरेंज किया. चार्ज us around 200 per person and who brought us to Kasara station in about 2.5 hours. और फिर ऑन द वे हमने लंच के लिए हॉल्ट किया एंड दैट इज़ हाउ आवर जर्नी ऑफ दिस भंडारदरा कैंपेन केम टू एन एंड. इट वॉज अ ब्यूटिफुल विजिट and you should definitely go to experience the beautiful lakeside and the beautiful climate in Bhandardara. So that's all about this vlog. See you next time. Until then, take care. Bye bye and subscribe and like this video. Tada!